modules, hands-on training. Today, two more experts and trainers joined us for the workshop, and I would like to extend my warm welcome to Mr. Chandrasekhar Shukla sir and Mr. Vikas Naidu sir. Chandrasekhar Shukla sir is Director of Rostrix Infotech, Bangalore, Red Hat Training Partner. Mr. Chandrasekhar Shukla sir is having an experience of 17 years in IT, and he is also having 30 plus international certification. His expertise area are in Red Hat, Solaris, IBM, Cloud, DevOps, NetOps. Earlier, sir worked with IBM, HP, and Sun Microsystems. With such a vast technical profile, we are very much glad that sir is with us for this workshop. Welcome, sir, once again. And now I would like to call Mr. Chandrasekhar Shukla, sir, to start his session. Sir, please. Yeah. So, good afternoon, mm, Narendra sir. Good afternoon, Lalji sir, and very good afternoon for State University Management. Myself, Chandrasekhar Shukla, and I'm going to take this 2 day session today and tomorrow. And I'm very sorry that my colleague, Mr. Vikas Naidu, Linux screen is not able to share due to some error, maybe resolution, some problems. I'm very sorry, but anyway, we will resolve and we will do the hands-on maybe after some time, maybe tomorrow. Yeah. Excuse me, sir. Sorry to interrupt you. Sir, your voice is not clear. Some disturbance is occurring during your voice. Okay. Maybe your mic is not connected properly. Hello. Is it fine now? No, sir. Sir, it's still same problem. I am going to speak from other device. You can see in the list I have a Rostris Infotech. So from that ID I'm going to speak now. So just 1 minute. Can you unmute Rostris Infotech? Sir, please raise your hand so that I can unmute Rostris Infotech ID. Sir, please raise your hand so that I can identify. I will unmute you. Narendra sir, can you unmute Rostris Infotech? Wait a minute. Mic. Sir, now you can unmute yourself. Yes, sir. Hello, Narendra sir. Yeah, it is clear voice. Is it fine? Hello. Yeah. Now it's fine. Yeah, of course, that's fine. Narendra sir, अभी आवाज सही से आ रही है? बिल्कुल आ रही है. So yeah, so let's start now. So sorry for all the delay. Okay. So once again, thank you for this webinar. And without this, I'm to take this session, and I'll try my best to provide all the useful information related Red Hat Academy, current industry trend. So guys, before we start, a brief information about myself. I'm Chandrasekhar Shukla and I have work experience. My birthplace, I'm from Bihar, but settled in Bangalore. So last 21 years, I'm in Bangalore. I completed my engineering from University College of 2003 passed out.
And from 2003, I worked with many companies, like I worked with IBM, I worked with Sun Microsystem, I worked with HP, NetApp. I worked with all major companies in uh, this system admin profile and SME level. After I company and long history is there of the company since 12, 13 years. We are running the company and I associated in partner in India and I have offices in Bangalore and strong people in India. When you speak about, so we have offices in Indore, Bhopal, Jabalpur, Nagpur, and presence in till northeast. So Kanpur, Patna, Kathmandu. So this is my company profile, and here, behalf of Rostris and behalf of Red Hat training partner, I'm going to do this session. So guys, all the students, whoever is attending the session, you please attend carefully, okay? And I hope everyone is fine in this COVID-19 situations. Pandemic is yeah, very painful. So listen carefully and I'll try my best. So guys, you should know Sage University is Red Hat Academia. So, I'll explain in coming time, like after 10 minutes, 15 minutes, the importance of Red Hat Academia and what you can get benefit from your Red Hat Academy, how it's beneficial for all the students. So, I'll explain, but before, let's start now our conversation, because today's topic is Red Hat, importance of Red Hat, why Red Hat, so like that. So guys, here I'm just bringing your attention about current industry's trend. So current industry's trend and challenges for a computer engineer, a computer graduate. So if I very clearly about the current trend and current challenges, I can say like in the MP or in entire India, there are many colleges, many engineering colleges are there, and years are producing a huge number of students who like BE passed out, BA passed out, MCA passed out, MTech passed out, like that. But out of that, only 10% students are getting right job. Right job means they are getting getting a right job means they are getting profile. They are computer science graduate means they are getting IT company. They are not like that. So what is the reason? What is the main problem? Why students are not getting a job? So this is one problem. Same time, the second problem is companies. When we discuss about I have many association with many companies. We do a training and placement in corporate segment. So company says, like even in current time, companies are also struggling to get skilled resource, right resource. So companies are also struggling. They're also not getting right resource. Why they are not getting right resource? Because now we are in 2020, and what we should means there are a very big gap between uh, colleges syllabus, colleges training standard, and industry's requirement. A huge gap is there, a big gap is there. So current trend is NetOps, current trend is DevOps, current trend is cloud, current trend is machine learning and artificial intelligence, current trend is data science, data analytics, current trend is cybersecurity. So these are the area. Now, maximum companies, looks for a specialized candidate, and this kind of technology and this kind of knowledge of technology is not so easy. So here, after this session, you will get that roadmap. Means whoever is listening, they will get idea, they will get a proper roadmap how to go ahead to get a job in any multinational company, and what are the challenges of what not to do. So these things you will understand. So let's talk about
just I am starting my discussion. I'm comfortable with Hindi also. So I'll mix Hindi so students can understand properly. So guys, uh, let's start now. So आज का आप लोग हम देख कोई भी ऐप आप डाउनलोड करते हो, मोबाइल में व्हाट्सएप यूज करते हो या फेसबुक यूज करते हो या कोई भी हो, तो इसका एक डेटा सेंटर होता है। उसके तो यदि कंपेयर करें तो पहले कैसा था, पहले सिस्टम एडमिन की जॉब कैसे लगती थी और अभी का कैसा है, तो जस्ट आई कंपेयर। तो पहले क्या होता था, like 20 years before, if I talk about 2004 scenario, कि कोई एक कंप्यूटर रहता था, एक ऑपरेटिंग सिस्टम था, उसके ऊपर कोई डेटाबेस चल रहा है, वो यदि उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होता था तो वो ना व्हाट मेथड टू ट्रबल शूट एक इंजीनियर आता था, उसके इंस्टॉल। और तो उस टाइम का सिचुएशन ऐसा था कि वो इंजीनियर आता है, कंप्यूटर को रिपेयर करता था, बाद में तो डेटा उसकी सिक्योरिटी आया, जो डेटा था वो डेटा स्टोरेज था वो आगे जाके वर्चुअल फॉर्मेट में हुआ, वर्चुअलाइजेशन आया, बाद में वर्चुअल हार्डवेयर आए, वर्चुअल एप्लीकेशन आया, वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम्स आए। वर्चुअलाइजेशन में VMware, सिट्रिक्स काइंड ऑफ कंपनियां, रेड हैट, ये लोग बूम पे आए। उसके बाद गाइस क्लाउड आया। अब जब क्लाउड आया तो अगेन क्लाउड का डिमांड बढ़ा, सब कुछ क्लाउड पे। आज के डेट में आप जो भी यूज करते हो, अपना गूगल ड्राइव यूज करते हो या सब कुछ आप जीमेल यूज करते हो, एवरीथिंग इज ऑन क्लाउड। तो आपको ये समझना होगा कि क्लाउड बनता कैसे है, क्लाउड दिखता कैसे है, उसके कंपोनेंट्स कैसे होते हैं, उसका जो हार्डवेयर है उसको कैसे हम ऐड रिमूव कर सकते हैं, कैसे उसको स्केल अप किया जा सकता है। तो क्लाउड आया। तो क्लाउड मतलब बहुत सारे लोगों ने क्लाउड का स्पेशलाइजेशन किया। तो क्लाउड में पढ़ने के लिए लोगों ने ओपन स्टैक शुरू किया, फिर ओपन शिफ्ट शुरू किया, फिर गूगल क्लाउड हुआ, फिर एज्योर आया, फिर उसके बाद AWS आया। एक क्लाउड एक प्लेटफॉर्म बना, तो वहां से क्लाउड पे आया। अब क्लाउड के ऊपर ऑन द टॉप ऑफ क्लाउड हमारे पास ऑटोमेशन आया कि आज के डेट में, आज का जो जमाना है ओपन सोर्स का जमाना है और आज का जमाना है ऑटोमेशन का जमाना है। सब कुछ अपने आप हो जाता है, मतलब कि उसमें एरर हैंडलिंग, मैन हैंडलिंग बहुत कम होता है। जैसे एग्जांपल मान लो कि व्हाट्सएप आप यूज करते हो, तो व्हाट्सएप को जब अपडेट करना होता है या कोई भी ऐप को जब आप अपडेट करना होता है, तो देखो जो अपडेटेड इंफॉर्मेशन रहता है वो एक फाइल होता है और वो कहीं से किसी सोर्स से डाउनलोड होता है और आपके मोबाइल में, आपके ऐप में प्रॉपरली वो फिट हो जाता है बिना कोई एरर के, कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है। मतलब कि आपका ऐप अपने आप अपडेट हो गया, आपका व्हाट्सएप का बैकअप अपने आप हो जाता है, तो उसमें ऑटोमेशन है। तो ये जो जमाना है, आप अभी का जो करेंट ट्रेंड है, आपको ऑटोमेशन सीखना है। तो अभी देखो कितना आगे हम अभी जा रहे हैं। ऑटोमेशन में अभी डेवऑप्स में है कि डेवलपमेंट, डेवऑप्स में डिस्कस करूंगा आफ्टर सम टाइम। तो डेवऑप्स डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशंस आ गया। पहले जो होता था, आज से 5 साल पहले यदि हम देखें, 5 साल पहले का जो ट्रेंड था कि कंपनियां आती थी, बहुत सारी कंपनियां, और जावा डेवलपर्स को हायर करके ले जाती थी, C++ प्रोग्रामर्स को हायर करके ले जाती थी, और उन लोगों से C++ जावा में एज ए प्रोग्रामर उनसे जॉब करवाया जाता था इंडस्ट्री में। TCS, इन्फोसिस, विप्रो, CTS काफी बड़ी मात्रा में हायर करके लेके जाते थे, लेकिन वो खत्म हो गया। आज के डेट में जावा डेवलपर्स की उतनी हायरिंग नहीं होती है। क्यों नहीं होती, आखिर इसका क्या कारण है? उसका उसकी जगह मतलब कि किस टेक्नोलॉजी ने ले लिया। तो गाइस ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं करूंगा, जस्ट शेयरिंग द इंफॉर्मेशन की उसके जगह पे डेवऑप्स आ गया। डेवऑप्स में बहुत सारे टूल्स आ गए। जैसे क्या होता है आज के डेट में कि जो भी कंपनी है, कोई भी कंपनी के एग्जाम हम लेते हैं, इन्फोसिस हो गया, 1981 वो कंपनी बनी थी और आज से 40 साल पहले, 40 सालों में उस कंपनी ने हजारों सॉफ्टवेयर बनाए, लाखों सॉफ्टवेयर बनाए, वो सॉफ्टवेयर अक्रॉस द वर्ल्ड चल रहा है। तो क्या होता है कि आज की डेट में उन
जो इन्फोसिस हो गया या विप्रो हो गया, जैसे जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनियां हैं, तो वे कंपनियों के पास लाखों सॉफ्टवेयर है जो चल रहा है। उस सॉफ्टवेयर को मेंटेन कैसे करना है, जो रनिंग सॉफ्टवेयर है, उस मेंटेन करने का सबसे बड़ा जॉब अभी अवेलेबल है मार्केट में, जिसको हम डेवऑप्स के थ्रू करते हैं। जैसे एग्जांपल, मान लो कि आईआरसीटीसी का वेबसाइट है, टीसीएस ने बनाया है, आईआरसी रेलवे का, अभी पेंडेमिक सिचुएशन आया, अचानक से सारे रेल्स स्टॉप हो गए, कुछ स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, उनके फेयर चेंज हो गए। तो ये जो चेंजेज है, अब ये मेजर चेंजेज है, किसी सॉफ्टवेयर आसान नहीं है। तो वो जो कैसे करना है कि हम कोई भी चेंज करें एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर में, वो सॉफ्टवेयर डिस्टर्ब ना हो, वो सॉफ्टवेयर चलता रहे, तो वो हम डेवऑप्स के थ्रू करते हैं। बहुत सारे टूल्स आ गए हैं उसको करने के लिए। यदि कोई स्टूडेंट उस टूल्स को पढ़े, उसका स्पेशलाइजेशन करे, तो उसको जॉब लगेगा डेवऑप्स में। जैसे गीट हो गया, गीट हब हो गया, मैवन हैक टूल, एंट हो गया, जीरा हो गया, दीज आर द टूल्स वी विल डिस्कस। क्योंकि आप सेज इज रेड हैट एकेडमिया और हम उसके डिलीवरी पार्टनर हैं। ऑफ कोर्स वी विल बी एंगेजिंग ऑल द ट्रेनिंग सेशन इन सेज यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट विल गेट बेनिफिटेड। तो वहां पे वो जगह आ गया। अब आगे आगे का जैसे आप समय देखते हैं कि अब जैसे ऑपरेशंस का आप देख लो, कोई भी सर्वर्स है उस पर मैन हैंडलिंग बहुत कम है, ऑटोमेटेड वो हो जाता है। जैसे एग्जांपल कैसे होता है, मान लो पहले क्या होता था, पहले कोई मशीन है, कंप्यूटर है, कोई भी लैपटॉप है, और उस पर टैली चल रहा है, विंडोज क्रैश हो गया या कुछ हो गया, तो क्या होता था, उसको फिर से री इंस्टॉल करो, कुछ करो। पहले ऐसे होता था, टाइम टेकिंग होता था, डेटा का बैकअप लो, डेटा बैकअप लेने में बहुत सारे चैलेंजेस थे। आज के डेट में क्या होता है गाइस कि एवरीथिंग इज ऑन क्लाउड, और उस पर वीएम्स होते हैं, इंस्टेंसेस होता है, उस पर वो एप्लीकेशन चलता है। तो किसी कारण से यदि वो इंस्टेंस या वो एप्लीकेशन या वो वर्चुअल मशीन क्रैश होता है, तो क्या होता है, अपने आप विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वह जो वीएम है, वो जो इंस्टेंस है, वो डिलीट हो जाता है। विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वो इंस्टेंस क्रिएट हो जाता है। विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड उसके जो एप्लीकेशन डेटा है रिस्टोर हो जाता है। मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा वो एप्लीकेशन से रिस्टोर हो गया, अप हो गया, रनिंग है, और वो फंक्शनिंग हो गया। तो विद इन सेकेंड हो जाता है, पता नहीं चलता, इतना कम डाउन टाइम है। तो ये कैसे होता है, वो ऑटोमेशन के थ्रू होता है। तो हम ऑटोमेशन, जो ये ऑटोमेशन ये आपको पढ़ना है, इस लेवल तक आपको आना है कि आप चीजों को, वर्क को ऑटोमेट कर सको, जो अपने आप हो सके। तो हर जगह टेक्नोलॉजी एवरीवेयर, आज के डेट में कोई भी डिपार्टमेंट है, या डिफेंस हो, या जो भी कोई भी सेगमेंट उठा के देख लो, उसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व। बिना टेक्नोलॉजी के हम कुछ भी नहीं कर सकते। और बहुत बड़ी उसकी बात है कि जो भी टेक्नोलॉजी, उसकी सिक्योरिटी। तो पहले हम सिक्योरिटी बहुत छोटे लेवल पे पढ़ते थे, वेरी स्मॉल लेवल पे पढ़ते थे कि हमारा 10 कंप्यूटर है, डेटा उसको सिक्योर कैसे करें। आज का जो सिक्योरिटी है, यदि आप सिक्योरिटी फील्ड में जाना चाहते हो, ओपन सोर्स की सिक्योरिटी, इतने सारे टूल्स हैं, इतने सारे उसके डेटाबेसेस हैं, उसकी सिक्योरिटी कैसे करें। तो आपको यदि उस फील्ड में जाना है तो आप उसको पढ़ सकते हो। तो हमारा समय, हमारा जो ट्रेंड है, कहाँ से कहाँ तक चला गया। तो गाइस, आपको डेवऑप्स पे जाना हो या नेटऑप्स, नेटऑप्स का मतलब क्या होता है, नेटवर्क प्लस ऑपरेशन। नेटवर्किंग भी आज के डेट में बहुत सारे, बिना नेटवर्क के हम कुछ नहीं कर सकते। आज हम बात कर रहे हैं जूम ऐप के थ्रू, तो ये कहीं ना कहीं नेटवर्क्स है, ये आवाज पहुंच रहा है आपके पास। इसके बीच में बहुत सारे डिवाइसेस हैं, बहुत सारे राउटर्स हैं, बहुत सारे स्विचेज हैं, बहुत सारे वायर्ड कनेक्शन है, बहुत सारे वायरलेस डिवाइसेस हैं। ये जो आवाज है, इस पासिंग थ्रू ऑल द डिवाइसेस एंड रीचिंग टू यू। तो ये जो इसको कैसे सिक्योर करें, ये जो इसको अपने आप कैसे करें, कैसे डेटा अपने आप सब रिकॉर्डिंग हो जाएगा, कैसे स्टोर हो जाएगा, कैसे रीस्टोर हो जाएगा, ये सारी चीजें नेटऑप्स में है कि नेटवर्क को हम ऑटोमेट कैसे करें। तो नेटऑप्स पे आता है। इसके बाद नेट सेक ऑप्स है, उसमें सिक्योरिटी इनेबल कर दोगे तो नेट सेक ऑप्स हो जाएगा। डेव सेक ऑप्स है, तो उसमें डेवऑप्स में सिक्योरिटी इनेबल करेंगे। तो ये जो टेक्नोलॉजी का जो इतना गैप है, इसको यहाँ तक यदि आप पहुंच जाते हो, यदि आज के डेट में यदि आप पहुंचना चाहते हो, यदि ये ड्रीम, जैसे पहले क्या होता था, हम लोग के समय में क्या होता था कि 3 लाख का पैकेज एक बहुत स्टैंडर्ड पैकेज होता था। कि हमारे समय में 1,80,000 मतलब 2 लाख का पैकेज मिल गया तो एक अच्छा जॉब होता था। 3 लाख। आज के डेट में बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं टू गेट अ गुड जॉब।
आज 2 लाख 3 लाख का भी उनको जॉब नहीं मिलता है। ऐसा नहीं कि जॉब नहीं है। तो यदि आप लोग प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर गाइडलाइन से यदि आप उसको पढ़ते हो, तो ऑफ कोर्स यू कैन गेट 12 lakhs का पैकेज। एक डेवऑप्स इंजीनियर को 12 लाख का पैकेज मिलता है, एक डेवऑप्स इंजीनियर को 18 लाख का पैकेज मिलता है, एक क्लाउड इंजीनियर को 10 लाख का पैकेज मिलता है। तो जमाना यहाँ पे है। अब ये नहीं कि हम उस लायक नहीं है, यस यू कैन गेट दैट, लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो पढ़ने का ये जो ट्रैक है कि आप उसको कैसे अ, पढ़ो, कहाँ से आप शुरू करो। तो कहीं से भी इसको शुरू करना है, सबसे पहले आप लोगों को स्टूडेंट्स, आपको इस प्रोफाइल के लिए नेटवर्किंग्स आना चाहिए। मतलब बिना नेटवर्क्स के, बिना नेटवर्किंग डिवाइसेस के आपको आइडिया होना चाहिए कि होता कैसे है। नंबर 1, जस्ट प्लीज नोट। सेकेंड, आपको एक 1 2 3 ऑपरेटिंग सिस्टम का नॉलेज होना चाहिए। तो अब जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो आपको विंडोज आना चाहिए, आपको लाइनेक्स आना चाहिए, आपको यूनिक्स आना चाहिए। तो ये जो विंडोज, लाइनेक्स, यूनिक्स, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि देखो आप कोई भी ट्रबल शूट करोगे तो कहाँ से करोगे? कोई सिस्टम्स पे बैठ के करोगे या लैपटॉप से बैठ के करोगे? तो वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम का नॉलेज है वो स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए। जब आपके पास ये नॉलेज है, 2 नॉलेज, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नॉलेज एंड उसके बाद नेटवर्क्स का नॉलेज, ये 2 नॉलेज यदि आपके पास है, उसके बाद आप क्लाउड सीख सकते हो। तो अब क्लाउड में क्या सीखना है फ्रेंड्स, कि क्लाउड में क्या है कि हम क्लाउड को बनाते कैसे हैं। जैसे आपके पास 50 कंप्यूटर है, पुराने कंप्यूटर हैं, जस्ट फॉर द एग्जाम्पल, 50 कंप्यूटर्स के उतने डिवाइसेस, उतने हार्ड डिस्क है, उसमें उसमें स्टोरेज है, उसका मेमोरी है, उसके नेटवर्क्स हैं। तो सारे कंप्यूटर्स को हाउ टू क्लब ऑल टुगेदर, कैसे उसको हम क्लब कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास 50 कंप्यूटर है और एक कंप्यूटर 1 TB का हार्ड डिस्क है, तो हम 50 कंप्यूटर्स के हार्ड डिस्क को मिला के हम 50 TB के कर दें, तो कैसे करेंगे उसको? सारे मेमोरी रैम को हम कैसे क्लब कर दें, सारे पूरे हार्डवेयर कंपोनेंट को कैसे क्लब कर दें, सबको क्लब करके एक कैसे बनाए ऑन द टॉप ऑफ हाउ टू पुट द एप्लीकेशन। तो ये क्लाउड में है कि हम बनाते कैसे। अब ये कैसे है, हम यूज करते हैं, हाउ टू वर्क ऑन द क्लाउड। जैसे आप गूगल ड्राइव के एग्जांपल ले लो, जरा सोचो, थिंक एवरीवन, कि हमको यदि गूगल ड्राइव पे डेटा स्टोर करने के लिए 2 GB यदि स्पेस देता हो, 2 GB जस्ट फॉर द एग्जांपल, और कितने करोड़ यूजर्स हैं जो यूज करते हैं, तो इतना डेटा कहाँ स्टोर होता होगा, किस फैशन में स्टोर होता होगा, उसका बैकअप कैसा होगा, उसके डिवाइसेस कैसे होंगे। उसके बाद जब आप 2 GB से आगे बढ़ते हो, सपोज यू रीच टू मैक्सिमम लिमिट ऑफ 2 GB, यू विल गेट ऑप्शन टू इंक्रीज योर स्पेस। 2 GB से आप 10 GB जा सकते हो, जस्ट पे एंड यूज। तो ये क्या टेक्नोलॉजी है, क्लाउड की कैसी टेक्नोलॉजी है। तो ये क्लाउड जब आप पढ़ोगे तो क्लाउड में इसके लिए क्लाउड स्पेशलाइजेशन करना होगा। तो क्लाउड कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम सीखना है, नेटवर्क सीखना है। उसके बाद जब आप इसमें एक्सपर्टाइज हो जाते हो तो क्लाउड सीखो। अब जब क्लाउड की हम बात करते हैं तो इसमें पब्लिक क्लाउड है, प्राइवेट क्लाउड है, हाइब्रिड क्लाउड है, ये तीनों का स्पेशलाइजेशन करना है। फिर क्लाउड स्टोरेज है, जहाँ पर डेटा स्टोर होता है क्लाउड का। फिर क्लाउड की सिक्योरिटी, इतने इतने सारे थिंग्स यू हैव टू लर्न। तो जैसे यदि आपको क्लाउड इंजीनियर बनना है, सपोज यू वांटेड टू बिकम अ क्लाउड इंजीनियर, हम क्लाउड को कैसे सेटअप कर सके, क्लाउड को कैसे ट्रबल शूट कर सके, तो आपको कोई भी एक क्लाउड, 2 क्लाउड में स्पेशलाइजेशन कर लो। तो सबसे पहले मैं सजेस्ट करता हूँ, माय ओपिनियन, कि आपको एक हाइब्रिड क्लाउड आना चाहिए। मतलब यहाँ पे ओपन शिफ्ट आप सीख लो, इट विल हेल्प फॉर द हाइब्रिड क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड की बात आती है, आप ओपन स्टैक सीख सकते हो। पब्लिक क्लाउड की बात आती है, आप AWS सीख सकते हो, गूगल क्लाउड सीख सकते हो, एज्योर सीख सकते हो। तो एक क्लाउड में 1 2 3 क्लाउड आप सीख लो, फिर उसके स्टोरेज को देख लो, उसकी सिक्योरिटी देखो। सिक्योरिटी यदि आप ऐड करते हो किसी भी टेक्नोलॉजी में, क्लाउड सिक्योरिटी सबसे हॉट प्रोफाइल, ओपन सोर्स सिक्योरिटी हॉट प्रोफाइल है। तो सिक्योरिटी को जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट वही है, सिक्योर करने के टूल्स वही है, बट where to implement that security। तो उस सिक्योरिटी को आप क्लाउड पे इनेबल करो तो आप एक सिक्योरिटी इंजीनियर कहलाओगे। तो एज ए सिक्योरिटी इंजीनियर बनने के लिए वहां पे जाओ आप, तो उसको भी आना चाहिए। इतना करने के बाद आपको क्लाउड, तो यहाँ पे आप सीखो क्लाउड बनाते कैसे एंड हाउ टू वर्क ऑन टॉप ऑफ क्लाउड। तो जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक प्लेटफॉर्म है। एक कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम से हम एक्सेस कर सकते हैं। उसी तरह से क्लाउड क्या है,
क्लाउड एक प्लेटफॉर्म है डेटा सेंटर को एक्सेस करने के लिए। डेटा सेंटर मतलब पीछे में बैक एंड में बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड रहते हैं ऑल टुगेदर। क्लाउड, अब हम क्लाउड पे काम कैसे करते हैं? क्लाउड पे काम करने का मतलब क्या, जो भी एप्लीकेशन चल रहे हैं उसको हाउ टू मैनेज दैट, सो हाउ टू ट्रबल शूट दैट। तो आप लोग जो एज ए फ्रेशर स्टूडेंट यदि आपको जॉब करना है क्लाउड पे, तो कोई भी कंपनी आपसे क्लाउड नहीं बनवाएगी, पूरे ऑलरेडी क्लाउड बने बनाए हैं सारे कंपनीज में। आपको क्या आना चाहिए, क्लाउड पे हम काम कैसे करें, उसकी जो काम होता है उसको ट्रबल शूट कैसे करें। तो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड, लर्न, और उसकी जो मेथोडोलॉजी है वो आपको सीखना है। ये रहा क्लाउड। अब क्लाउड के ऊपर हम आते हैं ऑटोमेशन, उसके ऊपर थर्ड लेवल पे आता है डेवऑप्स। तो डेवऑप्स पढ़ने के लिए आई डोंट हैव पीपीटी बट अगेन आई विल शेयर इट। I don't have any problem. Maybe by tomorrow we will extend this session. So DevOps, अब DevOps पे यदि आप पकड़ बना लेते हो, जैसे यदि कोई प्रोग्रामिंग का लड़का है उसको सी अच्छे से आता है, जावा की कोडिंग उसको अच्छे से आती है, तो हम ये नहीं कहें कि फ्रेंड्स यदि आपकी जावा की प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी है तो आप बैठ के सिक्योरिटी में जाओ या क्लाउड में जाओ। हम उसको क्या बोलते हैं, यू शुड हैव आइडिया अबाउट एक ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क आइडिया रखो। इंजीनियर हो, इंजीनियर को सब चीज आना चाहिए। तो आप वहां पे डेवऑप्स के डेवलपमेंट वाले टूल सीख लो, गीट सीख लो, GIT, गीट, मैवन सीख लो। आप लोग को यदि याद होगा या आपको पता होगा तो पहले आज से 10 साल पहले टेस्टिंग का जॉब हुआ करता था, मतलब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, एंड वो सब जॉब चला गया। उसका टेस्टिंग आज के डेट में ऑटोमेटेड होती है। हमारे पास JUnit है, टूल्स है टेस्टिंग के, सेलेनियम्स है। तो वो सब टूल्स यदि आप पढ़ लेते हो, 2 4 5 टूल्स है, तो आपकी जॉब लग जाएगी। तो क्या यहाँ पे है, क्या करना है, एक प्रॉपर गाइडलाइंस कि एक फोकस्ड करो कि करना क्या है, आपको क्या बनना है, इंटरेस्ट किस एरिया में है। यदि आपको कोडिंग आती है, बहुत अच्छे से आती है, तो आप उसको पढ़ो। ऑटोमेशन भी पढ़ो, आज के डेट में सॉफ्टवेयर भी ऑटोमेट होते हैं। जैसे यदि यहाँ डिस्कस करेंगे, यहाँ पे एनसिबल है, उसमें हम प्ले बुक्स में प्ले मतलब लिखते हैं, वो काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग ही है कि किसी भी सर्वर को हम ऑटोमेट कैसे करें। जैसे पहले आप जो पढ़ते हो कि हम एक प्रोग्राम लिखें, 1 से 100 तक को ऐड कैसे करेंगे, उसी तरह से मैं बोलूँ कि आपकी यूनिवर्सिटी में एक सर्वर चल रहा है, उस एक डेटा है, जस्ट मूव दैट सर्वर फ्रॉम दैट लोकेशन टू सम अदर लोकेशन। उसके लिए आपको एक प्रोग्राम लिखना है। तो वो भी जब तक आपको उसका इन एंड आउट नहीं पता होगा, तब तक आप उसको नहीं लिख सकते हो, उसकी प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते हो। तो एक अच्छा प्रोग्रामर बनने के लिए जो करंट ट्रेंड्स हैं, जो उसका फ्लो है, वो आपको आना चाहिए। तो गाइज वहां तक जाओ। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि राइट ए प्रोग्राम टू टेक अ बैकअप फॉर ऑल द लॉग्स, तो कोई सर्वर्स है वहां पे हम जितनी बार लॉग इन करेंगे या लॉग आउट करेंगे या जो भी एक्टिविटीज होता है वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड होता है। अब उसके लिए प्रोग्राम लिखो आप, हाउ टू टेक द बैकअप। मान लो कि हमारा कहीं पे डेटा है, 100 TB का स्टोरेज है, और हम एक प्रोग्राम लिखना चाहते हैं कि जब भी 100 TB डेटा हमारा हो जाए, मैक्सिमम लिमिट रीच करे या 80% रीच करे, उस डेटा को, वो डेटा अपने आप कंप्रेस हो जाए, वो डेटा अपने आप कहीं पे बैकअप हो जाए, और उसके लिए आपको प्रोग्राम लिखना है। और इन द उसको बाद में यदि कुछ क्रैश हो या कभी जरूरत पड़े तो लेट इट रिस्टोर ऑल्सो। तो हाउ टू राइट प्रोग्राम, तो एज ए प्रोग्रामर यदि आप बनना चाहते हो तो योर थॉट शुड बी इन दैट लेवल, तब जाके आपको है ना एज अ गुड प्रोग्रामर की जॉब मिलेगी आपको। ये हो गया प्रोग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन। तो अब एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है कि देखो, जैसे कि बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर नहीं चल सकता, दोनों कंपेटेबल है। मतलब कि जब हम बड़ा से बड़ा सॉफ्टवेयर तभी चलाएंगे जब हमारे पास बड़ा से बड़ा हार्डवेयर हो। तो उसी तरह से कोई भी सॉफ्टवेयर है, उसके पीछे पहले छोटा सा कंप्यूटर होता था, उसके बाद डेटा सेंटर्स आ गए, उसके बाद सब कुछ क्लाउड पे है, सब वर्चुअल मोड में है, सब इनविजिबल मोड में नहीं दिखता, कहीं और है। तो उस मोड पे कैसे काम करना है, तो वो जो अभी टेक्नोलॉजीज है, जेनकिंस है, शेफ है, पपेट है, एंसिबल है, और क्या बोलते हैं कि डॉकर्स है, कंटेनर्स है, कुबरनेटिस है। तो दीज आर द टूल्स यू शुड नो, और यू शुड नो। तो हम ये नहीं कहते कि आप सारे टूल्स सीख जाओ, लेकिन जो मेजर टूल्स हैं यदि आप सीख लेते हो, जैसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम सीख लो, एक क्लाउड सीख लो, 2 टूल्स आप डेवऑप्स से सीख लो, आपकी प्रोफाइल कंप्लीट होती है और आपको एक अच्छा सा जॉब एज ए फ्रेशर कहीं भी इंडिया के किसी भी कोने में
5-6 लाख का जॉब के लिए स्ट्रगल नहीं करना है। एक्सक्यूज मी। तो यस, तो इसकी शुरुआत हम कैसे करेंगे? इसकी शुरुआत होती है एक ऑपरेटिंग सिस्टम से, और यहाँ पे आता है आपको लाइनक्स। लाइनक्स आपको सीखना है। बिना लाइनक्स के यदि आप लाइनक्स नहीं सीखते हो तो इसके बिना इस प्रोफाइल की जिंदगी ही अधूरी है। क्यों? जितने डेटा सेंटर्स हैं जहाँ पे हजारों लाखों करोड़ों कंप्यूटर्स जुड़े हैं एक साथ, वहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज करते हैं, वहाँ पे हम लाइनक्स यूज करते हैं या हम यूनिक्स यूज करते हैं, हम वहाँ पे विंडोज यूज नहीं करते हैं। तो जब हम डिस्कस करेंगे कि भाई लिनक्स हम क्यों यूज करते हैं और कहाँ पे हम यूनिक्स यूज करते हैं, तो यहाँ पे जस्ट फॉर 2 मिनट्स आई जस्ट एक्सप्लेन कि सबसे पहले आज से 50, आज से अराउंड 50 ईयर्स बिफोर, जब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हुआ करता था, जब उस समय कुछ भी नहीं था, कंप्यूटर्स थे, बड़े बड़े कंप्यूटर्स थे, बट ऑपरेटिंग सिस्टम उस समय नहीं था। उस समय सी की प्रोग्रामिंग भी नहीं थी, C++ भी नहीं था। उस समय एक प्रोजेक्ट था और उस प्रोजेक्ट में एक साथ सेम टाइम सी लैंग्वेज का इन्वेंशन हुआ और उसी के साथ साथ यूनिक्स भी डेवलप हुआ। तो डेनिस रिची एंड केन थॉमसन ने AT&T बेल लैब्स में यूनिक्स को डेवलप किया था, और यूनिक्स रिटन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि फंडामेंटल एंड फाउंडेशन बहुत काम की चीज है। आज भी इतना साल हो गया, सी का कोई अल्टरनेट नहीं है और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का अल्टरनेट नहीं है। तो जब यूनिक्स डेवलप हुआ तो बस डेवलप हो गया। उसके बाद उस यूनिक्स को कुछ कंपनियों ने, जैसे आईबीएम के पास भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, HP के पास भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, उस समय सन माइक्रो सिस्टम हुआ करता था, उसके पास भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, लेकिन उनके पास उनके हार्डवेयर थे, अलग अलग टाइप के उनके पास कंप्यूटर्स थे। तो स्टूडेंट्स, उन लोगों ने क्या किया, कंपनियों ने क्या किया कि उस यूनिक्स को उन लोगों ने AT&T से लिया और उस यूनिक्स को उन लोगों ने मॉडिफाई किया, और मॉडिफाई के बाद उन लोगों ने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया। जैसे HP ने HP UX डेवलप कर दिया, IBM ने IBM AIX डेवलप कर दिया, सन माइक्रो सिस्टम ने सन सोलारिस डेवलप कर दिया। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है 3 कंपनियों ने डेवलप किए, इसको हम बोलते हैं यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम उस समय डेवलप हुआ अराउंड 1971 में, 1972 में, वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम यदि अभी के सिनेरियो में बात करें, उस समय के सिनेरियो में बात करें, तो हार्डवेयर डिपेंडेंट था। हार्डवेयर डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि HP UX जब चलेगा तो HP हार्डवेयर पे चलेगा, और IBM AIX जब चलेगा तो IBM हार्डवेयर पे चलेगा, और सन सोलारिस जब चलेगा तो सन के हार्डवेयर पे चलेगा। वो नॉर्मल हार्डवेयर पे नहीं चलेगा, नॉर्मल कंप्यूटर पे नहीं चलेगा। तो ऐसा उसके हार्डवेयर पे डिपेंडेंसी थी दैट टाइम। तो अब यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम था, उन लोगों ने वैसे डेवलप किया, उसके हार्डवेयर की डिपेंडेंसी प्लस उसका सपोर्ट बहुत महंगा था, काफी कॉस्टली थी, इंडस्ट्रीज में काफी पैसे खर्च होते थे। बाद में क्या हुआ कि आफ्टर सम टाइम लाइनक्स डेवलप हुआ, और GNU प्रोजेक्ट था, लंबी हिस्ट्री है, हम जब क्लास में आएंगे वहाँ पे तो हम वी विल एक्सप्लेन। तो लाइनक्स डेवलप हुआ। लाइनक्स के साथ सबसे अच्छी बात क्या है कि ये ओपन सोर्स है, कम्युनिटी ड्रिवन है। उसके बाद सेकंड सबसे बेस्ट फीचर क्या है मेरे हिसाब से, कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि किसी भी हार्डवेयर पे इंस्टॉल हो जाता है। तो जितने तरह के हार्डवेयर, IBM जो हार्डवेयर बनाती है, IBM का हार्डवेयर है उस पर भी चलता है, सन का हार्डवेयर उस पर भी चलता है, HP का हार्डवेयर है उस पर भी चलता है। तो अब क्या हुआ कि बाद में स्लोली आज से 10 साल पहले यूनिक्स HP UX का मार्केट शेयर बहुत था, सन का बहुत मार्केट शेयर बहुत था, IBM AIX का मार्केट शेयर था। तो वहाँ से वो जो टेक्नोलॉजी थी वो यूनिक्स हो गया। बाद में हम लाइनक्स पे आ गए। क्यों? क्योंकि लाइनक्स प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। तो ऐसे धीरे धीरे लाइनक्स का ग्रोथ शुरू हुआ, और आज की डेट में, करेंट टाइम में, यूनिक्स और वो जो हार्डवेयर नहीं है कम है, और मेजोरिटी जो कवर है, मार्केट शेयर है, वो आपका लाइनक्स का है। तो लाइनक्स में भी रेड हैट का जो लाइनक्स है, हमारे हिसाब से 80% मार्केट शेयर रेड हैट लाइनक्स का है। तो यदि आप लाइनक्स का जो स्टार्टिंग के कोर्सेस हैं, जैसे आप रेड हैट एकेडमी है सेज यूनिवर्सिटी में, यदि आप रेड हैट का कोर्स करना चाहते हो, कहीं बाहर जाके करना चाहते हो, तो
उसका जो ट्रेनिंग है, बाहर में जाके जो भी ट्रेनिंग फी आप पे करते हो, यदि आप कॉलेज में सीखते हो, अपनी यूनिवर्सिटी में, सेज यूनिवर्सिटी में सीखते हो, तो ऑलमोस्ट 70 to 80% आपको ट्रेनिंग में डिस्काउंट मिल जाएगा। ये क्यों मिलेगा? कि इसका बेनिफिट मिलेगा चूंकि आपका यूनिवर्सिटी रेड हैट एकेडमी है। यदि आप उसका सर्टिफिकेशन करना करना चाहते हो, अराउंड 7 सर्टिफिकेशंस रेड हैट एकेडमिया के अंदर आते हैं। यदि आप बाहर जाके कहीं पढ़ते हो, दिल्ली बॉम्बे, जो भी पैसा लगेगा बाहर में, यदि आप कॉलेज के कैंपस के अंदर करते हो, तो उस सर्टिफिकेशन में 50% का आपको डिस्काउंट मिलता है। तो आप लोग अपना अपना जो टेक्नोलॉजी है, अपने अपने आप को जो आपको स्किल अप करना है, या इस जो टेक्नोलॉजी का जो गैप है उसको पूरा करना है, तो उसको आप लोग स्टार्ट कर सकते हो अपने कॉलेज कैंपस से ही। आगे नहीं जाना है, वहाँ से कहीं दूर नहीं जाना है, वहाँ से आप शुरू कर सकते हो। तो सबसे पहले आप अच्छे से स्ट्रॉन्ग रेड हैट का रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स अपने कॉलेज से आप लोग शुरू करोगे। जब भी इसको ऑनलाइन शुरू कर सकते हो आप लोग, क्लाउड की भी लैब है, आप कॉलेज के लैब को भी आप रिमोट एक्सेस ले सकते हो, हम लोग लैब को सेटअप करेंगे। तो इससे आपका एक स्टार्ट होगा फाउंडेशन। आप उसका एक एक दो सर्टिफिकेशन करोगे, एग्जाम दोगे, तो कॉन्फिडेंस आएगा। क्यों? क्योंकि पहला सीढ़ी है डेवऑप्स तक जाने का, सबसे पहला क्लाउड तक जाने का सबसे पहली सीढ़ी है। आपको अच्छा से वेरी गुड शुड हैव नॉलेज ऑन रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स। क्योंकि यहाँ पे रेड हैट जो हम पढ़ाते हैं, जो आप पढ़ते हो, वही इंडस्ट्रीज में यूज होता है। जो कमांड आप क्लास में पढ़ोगे, वही कमांड इंडस्ट्री में भी यूज होता है। जो यहाँ पे सीखोगे, वहीं जाके वहाँ पे काम करोगे। तो यदि पहली सीढ़ी आप यदि अपने कॉलेज में कंप्लीट करते हो, फिर भी यदि आप क्लाउड लेवल तक नहीं जाते हो, या आप डेवऑप्स तक नहीं जाते हो, फिर भी आपको जॉब मिलेगा। इंदौर में ही आपको जॉब मिल सकता है। ऐसा नहीं कि आपको इंदौर में एक रेड हैट का स्टार्टिंग का 2 सर्टिफिकेशन कर लो तो जॉब नहीं मिलेगा। इंदौर, अब हम आपको बताते हैं आपके शहर का एडवांटेज। आप लोगों को बैंगलोर, पुणे, यूएस कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बिकॉज आई एम फ्रॉम बेंगलुरु एंड आई सीन द मार्केट फ्रॉम लास्ट 20 years। बैंगलोर सेचुरेटेड हो चुका है, हैदराबाद सेचुरेटेड हो चुका है। आने मतलब इंदौर जो है आपका शहर, सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है आईटी इंडस्ट्रीज के हिसाब से। तो आप आपको इंदौर में ही जॉब मिलेगा। फर्स्ट। सेकेंड पॉइंट, आज के डेट में जॉब करने के लिए फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल ऑफिस की जरूरत नहीं है। यू कैन वर्क फ्रॉम होम। तो सब कुछ क्लाउड पे है। योर वर्क इज ऑन द क्लाउड। आपके पास जस्ट ब्राउजर से लॉग इन करना है और आपको काम करना है। तो वर्क फ्रॉम होम, अभी आईबीएम ने अपने 70% रिसोर्सेज को हटा दिया, सब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो ये कोविड का सिचुएशन अभी हमारे पास आया है, एक इतना बड़ा चैलेंज पूरे वर्ल्ड के सामने। तो देखो यहाँ से ऐसा नहीं कोविड के बाद दूसरा कोविड नहीं आएगा, कोविड पार्ट 2 भी आएगा, कोविड पार्ट 3 भी आएगा। तो ये ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आते रहेंगे। तो क्या है कि आप यू कैन वर्क फ्रॉम होम, यू कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर। तो ये टेक्नोलॉजी है, ये आपको सीखना है। तो स्टूडेंट्स, यू नीड टू फोकस वेरी क्लियरली कि आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम को सीखो। इसके एक यहाँ से आप सीख के क्लाउड पे भी जा सकते हो, और डेवऑप्स पे जा सकते हो, नेटऑप्स पे जा सकते हो। नंबर 1। नंबर 2, यदि आपको प्रोग्रामिंग करनी है, जैसे आप जावा का प्रोग्राम लिखना चाहते हो या सी कोई भी प्रोग्राम, तो आप उस लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम है, वहाँ पे उस प्रोग्राम को चला सकते हो। आप पाइथन वहाँ पे चला सकते हो, कोई भी प्रोग्राम स्क्रिप्ट चला सकते हो, शेल स्क्रिप्ट चला सकते हो, पर्ल चला सकते हो, रूबी चला सकते हो, कोई भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज उस पर चला सकते हो। तो एक और जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है गाइस, वेरी ऑनेस्टली इट्स सबसे आसान ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये बहुत कठिन नहीं है। मैं मेरे कॉलीग मिस्टर विकास नायडू का सिस्टम्स कनेक्ट नहीं हो पाया है, व्हाटएवर रीजन। हम आपको दिखाते कि कितना आसान है, एकदम भारी नहीं है, बहुत इजी। और इजी इजी में बच्चे पास कर जाते हैं, इजी इजी में बच्चे सीख जाते हैं हंसते खेलते। और इसको सीखने के बाद आपका बजट अलाउ करता है, आप क्लाउड पे जाओ, उसके बाद आप डेवऑप्स पे जाओ। तो ये सब सारी स्टेप्स है। ये है हमारा सर्टिफिकेशन पाथ, जिसको आप करो, जिसको आप माइंड मेकअप करो, और आप अपना करियर सेट कर सकते हो। तो ये एक क्या बोलते हैं कि एक ट्रैक हुआ, इसको आप लोग सोच सकते हो। नेक्स्ट, जस्ट 1 second। सो गाइज, जस्ट बिकॉज आई एम इन ऑडियो मोड, स्टूडेंट यहाँ पे यदि आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहो तो आप पूछ सकते हो। जस्ट कोऑपरेट, आई नीड जस्ट कोऑपरेशन बिकॉज पीपीटी नॉट शेयर्ड एंड दैट स्क्रीन नॉट शेयर्ड। तो यदि आप यहाँ पे कुछ पूछना चाहो तो आप पूछ सकते हो, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। नरेंद्र सर, आप भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर।
Hello everyone. If you have any question, you can ask or drop a message on the chat box. Anyone, if you have any question, you can ask. I think, sir, there is no question from audience side. ओके सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. सो यदि क्वेश्चंस आप लोग नहीं पूछ रहे हो तो दैट्स ओके, बट एनीवे ट्राई टू लिसन दिस लेक्चर. ध्यान से आप इसको सुनो, शायद आपको ये कुछ बेनिफिट करे. हम मिलते रहेंगे वहाँ पे. आप आपके कॉलेज में हम लोग आएंगे. अभी इसका आरएचए का इनॉग्रेशन करना है सेज का, तो उसके बाद देयर आर मेनी एक्टिविटीज यू विल एंजॉय इन रेड हैट. बहुत सारे चीजें हैं करने के लिए. यू विल डू दैट. तो लेट्स स्टार्ट नाउ. हम शुरू करते हैं कुछ अदर इट्स रिलेटेड टू लाइनक्स ओनली. हम इसको डिस्कशन करते हैं कि इसका हम. सो एवरीवन लिसन केयरफुली. आज के डेट में जो आप डेली आप जो जिस चीज़ को आप देखते हो, जैसे आप टिकट बुक करते हो IRCTC. IRCTC का पूरा सिस्टम रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स पर चलता है. तो आपको यहाँ पे क्या सोचना है कि मतलब आप ये जानो कि जितने वेब सर्वर हैं, सारे वेब सर्वर्स, अपाचे वेब सर्वर्स, तो 80% रन ऑन अपाचे वेब सर्वर्स. तो ये जो IRCTC का वेबसाइट है, आप देखो कि आप उसको ऐप भी है, आप उसको ब्राउज करते हो, वहाँ पे जाके आप सर्च करते हो, टिकट्स मतलब सीट्स अवेलेबिलिटी दिखती है, आप वहाँ पे जाके टिकट बुक करते हो, आपका पेमेंट पहुँच जाता है और विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आपके पेनर आ जाते हैं, मैसेज आ जाता है, मेल आ जाता है और आपका टिकट बुक हो जाता है. तो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे मैं बता दूँ कि जो बैकएंड में जो चीज़ें हैं, सर्वर्स हैं. एक सर्वर्स आपका मेल भेज देता है, एक सर्वर्स मैसेज भेज देता है, एक सर्वर PNR भेज देता है, एक सर्वर आपका पेमेंट ऑथेंटिकेट करता है. तो लिनक्स में क्या है कि लिनक्स जब आप शुरू करोगे सीखना, तो पहला एक उसमें लेबल्स है. पहला लेबल्स में आपको लिनक्स के बारे में सिखाया जाता है, और उसमें सेकेंड लेवल पे जाओगे, थर्ड लेवल पे जाओगे, उसमें आपको सर्वर बनाना सिखाया जाता है कि सारे सर्वर्स कैसे होते हैं, कैसे काम करते हैं. हम वेब सर्वर कैसे बनाते हैं, हम मेल सर्वर कैसे बनाते हैं, हम FTP के सर्वर कैसे बनाते हैं, हम प्रॉक्सी सर्वर कैसे बनाते हैं, हम कोई भी सर्वर, हम चैट सर्वर कैसे बनाते हैं, उस सर्वर्स को हम सीखते हैं. जब वो सीख जाओगे तो फिर हम सीखेंगे हम कैसे ऑटोमेट करते हैं. आप IRCTC का आपका एग्जांपल है जो रेड हैट पे चलता है. हम सेकेंड एग्जांपल देखते हैं जो करंट में हमारे यूज हो रहा है यहाँ पे. आपका आधार कार्ड. आप देखो आधार कितने लोग हैं, हाउ मेनी पीपल्स आर देयर, कितना पॉपुलेशन, सबका आधार नंबर है. ये जो आधार नंबर है कहीं न कहीं किसी न किसी मशीन पे स्टोर होता है. तो वहाँ पे जो सर्वर्स है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, हम वहाँ पे हम रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स हमारा यूज होता है. क्यों यूज होता है वहाँ पे? क्योंकि ये सिक्योर है, क्योंकि ये रिलायबल है. रिलायबल का मतलब स्टूडेंट्स, रिलायबल का मतलब क्या होता है? रिलायबल का मतलब इन देयर आर मेनी मेथड, मतलब वेज आर देयर. रिलायबल का मतलब क्या होता है कि एग्जांपल, यदि आपका लैपटॉप है, विंडोज का लैपटॉप है या कोई भी लैपटॉप है, आप उसको चलाओ, आप उसको ऑन कर दो, तो कितने दिन तक आप उसको चला सकते हो? कितने दिन तक पावर सप्लाई को बर्दाश्त करेगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, वो उसका प्रोसेसर गर्म हो जाएगा, उसका SMPS गर्म हो जाएगा और वो आपका लैपटॉप जो हार्डवेयर है वो क्रैश हो सकता है. लेकिन आज के डेट में कुछ ऐसे हार्डवेयर हैं, यदि हम अभी डिस्कस करेंगे, कि वो जो हार्डवेयर है वो 10-10 साल से लगातार चल रहा है. कितना स्ट्रॉन्ग हार्डवेयर है, 10 साल से कभी बंद ही नहीं हुआ वो कंप्यूटर, उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है. तो वैसे वैसे डिवाइसेस है. नंबर 1, हम जब डिवाइसेस की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो डिफेंस सेक्टर में ऐसे ऐसे डिवाइसेस यूज होते हैं जो -50 डिग्री टेम्परेचर में, हिमालय जो है वहाँ पे माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, वहाँ भी कंप्यूटर्स यूज होते हैं. तो
उतने माइनस टेम्परेचर में उस जहाँ पे पूरा डिवाइस फ्रीज हो सकता है, वहां पे कौन सा हार्डवेयर चलता है और कैसे चलता है, उस पे बहुत दिन तक काफी रिलायबल है, यूज करते हैं वहाँ पे टेक्नोलॉजी, वहाँ पे यूज करते हैं। नंबर 3 हम पासपोर्ट ऑफिस का एग्जांपल इंडिया में हमारे पास पीसी और पासपोर्ट का जो सिस्टम से हम डॉक्यूमेंट्स, आप पासपोर्ट बनवाने जाओगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स वैसे स्कैन करके जहाँ पर रखा जाता है, या जो भी आपके बायोमेट्रिक्स है, आई का जो स्कैनिंग होती है, थंब इम्प्रेशन का जो स्कैनिंग होती है, जो जहाँ पे स्टोर होता है, वो पूरा का पूरा रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स पे चलता है। तो इतना रोबस्ट है। चौथा हम एग्जांपल देखते हैं, हमारा स्टॉक एक्सचेंज का जो मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंज जैसे कि मुंबई स्टॉक एक्सचेंज हम देख लें, या न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज देख लें, जहाँ से हम सर्वर की जहाँ से हम शेयर ट्रेडिंग करते हैं। तो जब हम शेयर ट्रेडिंग करते हैं तो जो मशीन्स कंट्रोल करता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। तो ऐसे करके पूरा डिफेंस, जहाँ से आप डिफेंस में आते हैं, सबसे अभी ज्यादा यूज और डिमांड हमारे डिफेंस में है। आप सोचो कोई भी जैसे एयरक्राफ्ट उड़ता है, या हमारा जो भी मिसाइल लॉन्चिंग टेक्नोलॉजी है, हमको एक मिसाइल ही हिट करना है, जस्ट थिंक कि आज के डेट में वो भी ऑटोमेटेड है कि एक बार आप ब्रह्मोस मिसाइल को सेट कर दो, वो जाके टारगेट को हिट करके ही आएगा। उसमें जो ऑटोमेशन है, वहाँ पे जो सिस्टम्स है, वहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, हम वहाँ पे लाइनेक्स का यूज करते हैं। तो वहाँ पे हम क्यों नहीं दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं? क्योंकि हमारा लाइनेक्स काफी सिक्योर है, काफी रिलायबल है, काफी मतलब इजी, हमारे हिसाब से तो बहुत इजी, और बहुत सारे बच्चे उसको पढ़ भी रहे हैं। तो उसका एक बहुत बड़ा वास्ट एरिया, बहुत सारे वास्ट एरिया में लिनक्स का डिफेंस सेक्टर में यूज होता है। और आने वाले समय में मतलब सब कुछ तो जैसे रेल है वो भी प्राइवेट जा रहा है, तो डिफेंस में भी सारे जॉब्स आउटसोर्स हो जाते हैं। तो बहुत सारे बच्चों का, जैसे कि जबलपुर में काफी डिफेंस के हैं, आउटसोर्स हो जाते हैं, जो आप बच्चे जाके वहाँ पे काम करते हैं। तो आपको यदि आप इसको पढ़ते हो, इसको यदि आप करते हो, तो आपके पास अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी। हम ये नहीं कहते कि आप एक ही दिन में ऑटोमेशन सीख जाओ और तब जाओ। आप यदि थोड़ा सा भी पढ़ते हो तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। सामने एग्जांपल्स है, आप जो ऐप यूज करते हो, आप मोबाइल में जाओ, एंड्रॉइड क्या है, जाके उसके सेटिंग्स में जाके देखो, वहाँ पे उसका जो देखो क्या है, वहाँ पे वो भी लिनक्स है, उसका कर्नल लिनक्स है। बहुत सारे ऐप है, ऐप जो हम गेम, आप जो लोग गेम खेलते हैं, मैं गेम की बात करूँ, बहुत सारे बच्चे पबजी खेलते हैं। जस्ट थिंक अबाउट द पबजी का जो सर्वर है भाई, कि कितने लाखों करोड़ लोग एक साथ लॉगिन करते हैं और गेम खेलते हैं, ऑनलाइन मोड में गेम खेलते हैं। तो उसका जो सर्वर्स है, जो सर्वर्स पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम जहाँ पे गेम को होस्ट किया गया है, तो वहाँ पे लाइनेक्स यूज है। तो लाइनेक्स तो है, लाइनेक्स है, क्लाउड है, तो और उसके बाद ऑटोमेशन है, तीनों है। तो वहां से आप शुरू करो, लाइनेक्स पहले पढ़ना शुरू करो, फिर जॉब करो यदि आप, फिर क्लाउड सीखो, फिर उस पर आगे बढ़ो, फिर ऑटोमेशन सीखो, और समय के साथ साथ कीप ऑन अपग्रेडिंग योरसेल्फ। तो ये इतना मतलब कहीं भी चले जाओ, यदि सर्वर्स की बात आती है और डेटा सेंटर्स की बात आती है, तो वहाँ पे लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा ही आएगा। तो ये एक बहुत बड़ा एरिया है, और इसलिए यदि कोई स्टूडेंट अच्छा से इसको एडमिनिस्ट्रेशन सीखता है, तो उसको जॉब के लिए भटकना नहीं पड़ता और उसकी जॉब होती है। तो यहाँ पे आपको सीखना है। सेकेंड, आपको क्या करना है कि आपको सर्टिफिकेशन करना है। सर्टिफिकेशन अब आपके कॉलेज में आप करोगे तो 50% डिस्काउंट मिलेगा। तो वहाँ पे क्या है कि सर्टिफिकेशन करने क्या बेनिफिट है, इसका सर्टिफिकेशन आसान नहीं है। इसका सर्टिफिकेशन में आप मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन नहीं होता। रेड हैट का सर्टिफिकेशन ये परफॉर्मेंस बेस्ड एग्जाम होता है, सिनेरियो बेस्ड एग्जाम होता है, जहाँ पे रेड हैट का एग्जामिनर आता है और उसमें कुछ ट्रबल शूटिंग सेट करता है, और परफॉर्मेंस बेस्ड एग्जाम मतलब उसका टाइम होता है, उसमें बच्चे देते हैं और पास होते हैं। इस एग्जाम में कैसा होता है, एक क्वेश्चन गलत हो गया तो दूसरा तीसरा अपने आप गलत हो जाएगा। डिपेंडेंसीज रहती है, पूरा एक सिनेरियो रहता है, टोटल 15-16 क्वेश्चन का एक सिनेरियो रहता है, एक गलत तो सब गलत। तो सर्टिफिकेशन करने से क्या होता है कि एचआर, यदि आप अपने रिज्यूम में लिखते हो कि आप रेड हैट सर्टिफाइड हो, तो एचआर को फिल्टरिंग करने में, रिज्यूम फिल्टरिंग में मतलब इजी होता है। तो हमेशा कंपनियां सर्टिफाइड प्रोफेशनल को प्रिफर्ड करती हैं, इसलिए सर्टिफिकेशंस को करना चाहिए। पहला रीजन ये है। सेकंड रीजन क्यों सर्टिफिकेशन करना चाहिए कि
आईटी इंडस्ट्रीज में जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे, जैसे कोई रेड हैट का प्रोडक्ट है और एग्जांपल हम कोई भी जैसे टीसीएस की हम बात करते हैं, टीसीएस मेंटेन करता है आपका रेलवे का, टीसीएस मेंटेन करता है आपका पासपोर्ट, ये जो मेंटेन करता है, तो रेड हैट ने अपना सॉफ्टवेयर अपनी टेक्नोलॉजी टीसीएस को दिया हुआ है, टीसीएस उसके लिए रेड हैट को पे करता है, टीसीएस एक ह्यूज अमाउंट पे करता है। तो रेड हैट क्या कहता है कि हेलो टीसीएस, यदि आपके कंपनी में इतने कोई भी नंबर्स ले लो, 1000, यदि 1000 रेड हैट सर्टिफाइड प्रोफेशनल है, तो ये जो आप फी पे करते हैं इसमें हम आपको 10% का डिस्काउंट दे देंगे, 5% का डिस्काउंट दे देंगे, 20% का डिस्काउंट दे देंगे। इसलिए कंपनियां भी इंसिस्ट करती है अपने एम्प्लॉय को कि आप सर्टिफाइड बनो, और सर्टिफाइड कैंडिडेट को हायर भी इसीलिए किया जाता है कि वो एक ट्रस्टेड रहता है और एक टेस्टेड रहता है। तो ये सर्टिफिकेशंस आपको करना है, और आप इस रेड हैट का स्टार्टिंग के सर्टिफिकेशन आप अपने कॉलेज कैंपस में कर सकते हैं। Chansaka तो sir, और इसको मतलब बड़े लेवल, हाँ सर। sir, I have received the mail. Should I हाँ share the PPT? सर 1 घंटा हो गया, अब हम दिखाते जैसे वीएम बनाना सिखाते बच्चों को, कैसे यूज करते हैं, तो ये था सेशन। यदि स्क्रीन शेयर हो जाती तो वेल एंड गुड, क्योंकि पीपीटी में भी यही है, पीपीटी में बहुत कुछ खास पीपीटी में मतलब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, पीपीटी में प्रैक्टिकल का पीपीटी था वो, कमांड्स और टॉपिक्स थे उसमें। So whether I need to share it or not? नो सर, नहीं चाहिए, जरूरी नहीं है सर, नॉट रिक्वायर्ड। उसमें Okay. वो सेलेक्टेड पेजेस थे उसमें क्या था कि यदि स्क्रीन शेयर हो जाता और टर्मिनल शेयर हो जाते तो हम बच्चों को सिखाते कि कैसे एक बीएम कैसे बनता है, हम कैसे कमांड्स चलाते हैं, कुछ प्रैक्टिकल बच्चों को दिखाते। तो कोई नहीं, हम इसको कल करेंगे, और इसको यदि जरूरत पड़ा तो हम नेक्स्ट वीक में सेशन को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो वी आर द पार्टनर्स, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, तो इसको हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं, आगे भी लेके जाएंगे। Okay, sir. Okay. ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो गाइस आई एम वेरी सॉरी कि स्क्रीन शेयर नहीं हो पाया, और वी आर ऑल पीपल्स आर सिटिंग इन द डिफरेंट लोकेशंस ड्यू टू द कोविड। इसको मैं आप लोग के साथ में फिर से ज्वाइन करूंगा, कल का तो करेंगे, उसके बाद हम फिर मैनेजमेंट से आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे आप इसको अगले वीक में कभी भी करें, हम हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल्स दिखाएं, सब कोई उसको एंजॉय करें। तो आई एम एक्सपेक्टिंग सम क्वेश्चंस यहाँ पे कि बच्चे पूछें, तो शायद कुछ इंटरेक्शंस हो कि यहाँ तक कुछ बच्चों को, लोगों को कुछ समझ में आया, या कुछ हुआ या नहीं हुआ, कुछ इनके पास जा रहा है या नहीं। स्टूडेंट्स, कैन यू आस्क सम क्वेश्चंस? Okay, so I think there is no questions from anyone. Okay, no problem. Okay, so I was just discussing about that importance of certifications. So next क्या है कि let me actually it should be interactive session, यदि स्टूडेंट पूछेंगे तो शायद मुझे इजी रहेगा चीज़ों को डाइवर्ट करने में और डिस्कस करने में, कि डेवऑप्स से कुछ पूछें, नेटऑप्स से पूछें, या क्लाउड से कुछ क्वेश्चंस हो तो डिस्कस कर सकते हैं। Vikas sir, जब अपॉर्चुनिटी। Yes, sir. you are unmuted. Okay. सर वैसे व्हाट हो गया है, जूम अपन कल कर सकते हैं, कर सकते Okay, हैं। no problem. कल कर सकते हैं। ऐप वो आज नहीं कर सकते अभी कर सकते हैं, अगर वापस से अभी कल ही आप अपना सर, इसमें स्क्रीन शेयर नहीं आप देना ट्राई कीजिए। We have about 50 minutes. सर। You can do that. राइट नाउ आई एम नॉट इन अ होस्ट पोजीशन ना।
Yeah, I'll just make it out. हाँ नहीं आप Sir, Vikas sir, you are Yeah. so much right now. Okay. नायडू सर कैन यू ओपन द टर्मिनल, इस मेल को क्लोज कर दीजिए आप। मैंने किया, देखिए मेल Yeah. टर्मिनल क्लोज खोला है मैंने। टर्मिनल, It is visual. हाँ टर्मिनल ओपन कीजिए। या फाइन। और फॉन्ट बड़ा करेंगे Is it नायडू सर, फॉन्ट बड़ा करेंगे। या श्योर। इज इट ओके? लिटिल मोर, थोड़ा और बड़ा कीजिए। That's इट्स कंट्रोल इट विल sufficient. प्लस, गो आउटसाइड सर। या सही है। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, स्टिल हियर इट्स फाइन। One second guys, I'll start session in a couple of seconds, just wait. Okay, so again, it's a good to screen has been shared, और everyone, मैं अपने कॉलीग मिस्टर विकास नायडू का इंट्रोडक्शन करना चाहूँगा कि विकास सर का जो एक्सपीरियंस है काफ़ी बड़ा एक्सपीरियंस है। और मैं इनको आपको बता दूं कि जब रेड हैट शुरू में इंडिया में आया था तो सबसे पहले पार्टनर थे रेड हैट के। स्टार्टिंग में 2003 में रेड हैट के पार्टनर बने थे, और वेस्ट जोन में पूरे एमपी, छत्तीसगढ़, नागपुर को कवर करते हुए ही गॉट बेस्ट पार्टनर अवार्ड भी इनको मिला हुआ है। और वी स्टार्टेड आवर फर्स्ट रेड हैट सेंटर इन इंदौर। सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था सेंटर, ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन। ये अलग बात है कि हमने उसको पिच अच्छे से नहीं कर पाया और अब जाके हमारा ब्रांड खड़ा हुआ है, बट वी आर द फर्स्ट। एंड नायडू सर का जो एक्सपीरियंस है 17-18 साल का, 20 साल का इनका एक्सपीरियंस है, और मेरे हिसाब से इन्होंने एटलीस्ट 20,000 से ऊपर स्टूडेंट्स इन्होंने पढ़ाए हैं, और ये बच्चे काफ़ी बड़े बड़े पोजीशन पे अलग अलग कंपनियों में हैं। ही इज ऑल्सो highly experienced person. He is my colleague. He is one director in my company. And नायडू सर जो एकेडमीज हैं एमपी के, और जो भी एकेडमीज हैं उनको देखते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं, और बच्चों के लिए जो भी होता है ट्रेनिंग करना या उनको जो भी प्लेसमेंट कराना या जो भी हम लोग को होता है वो ही यूज्ड टू टेक केयर। तो हमारे नायडू सर हैं मिस्टर विकास नायडू। या तो यहाँ से हम लोग कुछ शुरू करते हैं कि मैं ये बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स को कि स्टूडेंट्स यहाँ पे मतलब बहुत सारे लोग और हम लोग उसको प्ले में आप लोग सीख जाओ। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे कि एक टर्मिनल है, यहाँ पे एक विंडो है लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। जैसे विंडोज में कोई एक विंडोज खुल जाता है, उसी तरह से यहाँ पे एक टर्मिनल विंडो खुला हुआ है। तो यहाँ से हम कुछ कमांड्स चलाते हैं या जो भी हमको इनपुट देना होता है यहाँ से देते हैं, ऐसे दिखता है। जैसे मैं सबसे पहले एक फीचर्स बताना चाहूँगा बच्चों को कि जैसे अभी का एजेंडा क्या है कि मैं आपको एक वर्चुअल मशीन बना के दिखाऊंगा, एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके दिखाऊंगा कि कैसे हम एक ओएस को इंस्टॉल कर सकते हैं। ये हम इंस्टॉलेशन ही दिखा देंगे।
स्टूडेंट्स जैसे मान लो कि आपको विंडोज का मशीन है और विंडोज की मशीन पे आपको कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना हो तो आप क्या करते हो, आपके पास VMware वर्क स्टेशन पे जाते हो या फिर कोई वर्चुअल बॉक्स पे जाते हो, उसको डाउनलोड करते हो, थर्ड पार्टी है वो, और उसके अंदर में आप विंडोज इंस्टॉल करते हो या कोई भी इंस्टॉल करते हो वहाँ पे, और उसके लिए आपका हार्डवेयर बेस मशीन आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसी तरह से यहाँ पे भी ऐसे ही है, हमारे पास इसको बोलते हैं केवीएम। केवीएम एक टर्मिनोलॉजी है, कर्नल बेस्ड वर्चुअल मशीन, कि एक होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हम एक गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल करें। और उसके लिए क्या होता है कि देखो, इसको करने के लिए आपका जो मदरबोर्ड है उसमें वो वर्चुअलाइजेशन का जो फीचर्स है वो इनेबल होना चाहिए। यदि वीटी फीचर्स आपके मदरबोर्ड में इनेबल नहीं है तो आप नहीं कर सकते हो। तो 8-10 साल से जो भी मदरबोर्ड आ रहे हैं बाय डिफॉल्ट उसमें वीटी फीचर्स इनेबल ही रहता है। तो वो बायोस में आपका वर्चुअलाइजेशन फीचर इनेबल होना चाहिए, और उसके बाद हम आराम से कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे और कुछ सर्विसेज को स्टार्ट करेंगे और कुछ स्टेप्स देखेंगे और उसको हम लोग कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको एक फीचर बताना चाहूँगा कि आप लोग पढ़े भी होइएगा कि लाइनेक्स में जैसे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टीटास्किंग है और सिक्योर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो मल्टी यूजर का मतलब क्या होता है, मल्टीटास्किंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मतलब आप देख सकते हो इजी। तो यहाँ पे मतलब आपको मैं बता दे रहा हूँ कि मल्टीपल यूजर एक साथ 10 यूजर लॉग इन कर सकते हैं, 15 यूजर लॉग इन कर सकते हैं, कभी यूजर्स लॉग इन कर सकते हैं एक साथ, मल्टीपल विंडो से मल्टीपल अकाउंट से टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। उसी तरह से द सेम वे हियर वी हैव अ फीचर इन लाइनेक्स। क्या है फीचर हो, एवरीथिंग इज अ फाइल। हम क्या बोलते हैं कि लिनक्स में जो भी है फाइल है। जैसे आपका लिनक्स का कोई मशीन है, जैसे नायडू सर का लैपटॉप है, ये जो मशीन है उनका पूरा का पूरा फाइल है, वो इस पूरी की पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल है, आपका हार्ड डिस्क फाइल है, मेमोरी फाइल है, फ्लॉपी ड्राइव फाइल है, कीबोर्ड फाइल है, सब कुछ फाइल है। हम उसको कहीं से जाके हम उसको उस फाइल को ओपन करके उसका इन्फॉर्मेशन हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये जानना है कि एवरीथिंग इज अ फाइल, सिंपल, इंक्लूडिंग योर लिनक्स हार्डवेयर। अब फाइल है, अब फाइल जब आप जान गए तो फाइल का मैनेजमेंट आपको पता होना चाहिए कि फाइल बनता कैसे है, फाइल सब कुछ फाइल है, पूरा एवरीथिंग इज फाइल। एक वर्चुअल मशीन जो आप जहाँ से डाउनलोड करते हो वो भी फाइल है, और जहाँ पे रहता है वो भी फाइल, सब कुछ फाइल। तो इस ये ना वो फाइल है, और फाइल का मैनेजमेंट आपको सीखना है, क्लासेस में हम लोग देखेंगे। नंबर 1। नंबर 2, हम यहाँ पे जो भी कमांड चलाते हैं, जो भी कमांड यहाँ पे कुछ कमांड्स है, जैसे कि नायडू सर कुछ कमांड चलाएंगे आप। डेट कमांड चला दो, एक डेट, कैलेंडर दिखा दो, एक डेट, आपको डेट दिख रहा है, कैल। तो स्टूडेंट्स गाइज आप देखो कि हमने 2 कमांड्स यहाँ पे चलाए हैं और कुछ आउटपुट आ रहा है। तो ये जो आउटपुट आ रहा है, तो ये जो हमने कमांड चलाया, ध्यान दो आप लोग, हमने जो कमांड चलाया यहाँ पे डेट और कैल, ये कमांड है, ये फ्रंट एंड पे कमांड दिखता है, लेकिन बैक एंड में ये एक फाइल है। वो फाइल एग्जीक्यूट होता है, वो फाइल इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में रहता है और वो फाइल ही एग्जीक्यूट होता है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ उस फाइल का लोकेशन, मैं डेप्थ में नहीं जाऊंगा बट जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, नायडू सर आप टाइप कीजिए वेयर इज कैल। तो ये देखो आप लोग, आप देख सकते हो कि यूएसआर बिन कैल एक लोकेशन है, यहाँ पे फर्स्ट लोकेशन यूएसआर के अंदर बिन, बिन के अंदर कैल। तो ये जो लोकेशन है यूएसआर क्या है, डायरेक्टरी है, उस डायरेक्टरी के अंदर बिन एक डायरेक्टरी है और बिन के अंदर कैल एक फाइल है। तो जब आप कैल कमांड टाइप करते हो ना, तो बैकएंड में वो फाइल एग्जीक्यूट होता है और वो आउटपुट आता है। तो ये है यहाँ पे फाइल, नंबर 1। नंबर 2, फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है कि वेरी सिंपल, मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि हम जो भी कमांड एग्जीक्यूट करते हैं, जो भी कमांड, हम ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो भी हम कमांड एग्जीक्यूट करते हैं या जो भी फाइल्स हैं, टोटल जितने लिनक्स में जितने फाइल्स हैं, जो भी फाइल्स हैं, जो भी कमांड्स हैं, उस कमांड के लिए, उस फाइल्स के लिए वो कमांड तभी काम करता है उस कमांड का एप्रोप्रिएट पैकेज उसमें इंस्टॉल रहता है। जैसे कर रहा था इंस्टॉल नहीं था, जैसे वो जूम का पैकेज इंस्टॉल हुआ है काम करना शुरू कर दिया। तो
स्टूडेंट्स आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि बारे में पता होना चाहिए, कमांड नहीं काम कर रहा है तो आप पैकेज इंस्टॉल कर लो, वो अपने आप काम करने लगेगा। जैसे ट्री कमांड टाइप करने के लिए, ट्री है क्या, ट्री ट्री सर आवाज कट रही है आपकी। आप ट्री कमांड चलाएंगे, ट्री, इज इट फाइन नाउ? या यस। सो हाँ, यहाँ ये देखो ये कमांड काम कर रहा है। मान लो एवरीवन की कमांड नहीं काम करेगा तो आप क्या करोगे, उसका एक पैकेज है, उस पैकेज को आप इंस्टॉल कर दो तो वो कमांड काम करने लगेगा। तो इसको करने के लिए गाइस पैकेज मैनेजमेंट एक टॉपिक है, हम लोग देखेंगे। और पैकेज मैनेजमेंट हम एक एग्जांपल दिखा देंगे आपको एक करके कैसे काम करता है। पैकेज मैनेजमेंट पे एक टूल होता है आरपीएम यम। तो आरपीएम यम के तो हम क्या करते हैं, पैकेज वो पैकेज करते हैं तो काम करेगा, काम करेगी। जैसे आप उस पैकेज को पर्टिकुलर हम दिखाते हैं कि पैकेज कैसे इंस्टॉल करना है। तो कोई पैकेज आप एफटीपी कमांड का टाइप करो नायडू सर, एफटीपी कमांड है क्या वहाँ पे आपके सिस्टम में? एफटीपी, जस्ट अनइंस्टॉल एंड रीइंस्टॉल, डोंट वरी। हाँ हाँ बाय कीजिए वहाँ पे। तो देखो यहाँ पे डीएनएफ रिमूव एफटीपी कर रहे हैं यहाँ पे। तो एक एफटीपी का पैकेज था वो सिस्टम से हट गया, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से। इफ आई डू अब इसको एफटीपी नो। इंस्टॉल कर दीजिए आप। या आप देखो यहाँ पे गाइस कि यहाँ पे स्लोली बी स्लो। नायडू सर एकदम आप स्लो रहे हैं, स्क्रीन बच्चे देख और तो देखा कि पैकेज को हटा देने के बाद एफटीपी कमांड काम नहीं कर रहा था, फिर से हम उसको इंस्टॉल कर देते हैं, डीएनएफ इंस्टॉल एफटीपी। अब देखो एवरीवन जस्ट सी दिस। it is going online, so taking time. It's downloading from internet, so it's not from the local repository. तो आप लोग इसमें क्या सीखोगे कि पैकेजेस के रेपोजिटरी कैसे बनाते हैं, मल्टीपल रेपोजिटरी कैसे बनाएंगे आप लोग। क्योंकि इंडस्ट्रीज में सिर्फ ये टॉपिक में आपको मैं बता दूं कि जॉब होता है पैच, कि पूरी इंडस्ट्रीज में कोई भी सर्वर होता है ना वो अपडेट होता है, पैचिंग उसको बोलते हैं। तो यदि आपको इस पे पकड़ है, यदि इसको आप यदि आता है सैटेलाइट सर्वर जिसको बोलते हैं हम लोग, यदि वो आप उसको कर सकते हो, पढ़ सकते हो, इसी पे एक टॉपिक है, ओनली वन टॉपिक, इस पे अच्छे से आपका एक्सपेक्टेशन का जॉब यहाँ पे मिलता है। तो Yes. प्रेस वाई, यस। ये आपका पैकेज उस समय डाउनलोड हुआ था और ये 63K का पैकेज था। ये इंस्टॉल्ड हो गया, प्रिपेयरिंग इंस्टॉलिंग, यू कैन सी नाउ गाइस। यप, तो इंस्टॉल हो गया। तो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेज। यदि पैकेज है तो कमांड काम करेगा, और यदि पैकेज नहीं है तो कमांड काम नहीं करेगा। और कोई भी फाइल पर्टिकुलर फाइल के लिए पैकेज होता है, किसी भी फाइल के लिए पैकेज होता है। तो उसको हम देखेंगे बाद में। नायडू सर यहाँ से आप एक काम करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग देखते हैं कि हम इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो भी बचा रहेगा हम कल भी करेंगे, और बचा रहेगा तो हम हमेशा बाद में भी करेंगे। मतलब वी आर नॉट ओनली फॉर 2 days, वी आर द एसोसिएटेड विद कॉलेज, सो हम लोग कभी भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग सीखते हैं कि एक वर्चुअल मशीन हम कैसे बनाते हैं, और उस वर्चुअल मशीन के ऊपर हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कैसे इंस्टॉल करते हैं। एक छोटा सा हैंड्स-ऑन प्रैक्टिकल देखते हैं, शायद ये हाफ एन आवर में इंस्टॉल हो जाए आपका एक और ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे
स्क्रीन पे की ऑलरेडी। जस्ट अ मिनट। नायडू सर आप बेस मशीन पे जाएं, फाउंडेशन या मशीन पे। या या सो गाइज ये जो रूट है ना, ये रूट यूजर है, इसको हम सुपर यूजर बोलते हैं। और हम बेस मशीन पे हैं, हम किसी वर्चुअल मशीन पे नहीं है। आप चाहो तो वर्चुअल मशीन के अंदर भी हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक कमांड टाइप करेंगे, वर्ड हाइफन मैनेजर। ध्यान दो एवरीवन, एक छोटा सा कमांड है। यदि ये कमांड काम नहीं करता है तो इसका पैकेज आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। और हमने कमांड को टाइप किया, यहाँ पे एक ऐसा विंडो आया, एक विंडो। इस विंडो पे ऊपर में एक टैब है, वहां से हम न्यू करेंगे, क्लिक दैट। ये देखो, इस नाइट से स्क्रीन बड़ा नहीं हो सकता क्या ये? नहीं, ये नहीं होगा। ओके, सो गाइस ट्राई टू सी दिस। इट्स बहुत आसान है। हमने सिर्फ एक ही कमांड टाइप किया था, वर्ड हाइफन मैनेजर, और हमको ये विंडो मिला। और यहाँ पे जो स्क्रीन है आप देख सकते हैं। ओके, नहीं होगा बड़ा, ठीक है। ना, आप यहाँ पे पूछ रहा है कि ये जो वर्चुअल मशीन आप बनाने जा रहे हो, वर्चुअल मशीन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करोगे वो कैसे करोगे? वो जो ओएस का इमेज है वो आपका लोकल है इमेज, या वो इमेज आपका कहीं पे नेटवर्क में है, या कहीं नेटवर्क में किसी दूसरे फाइल में है? दीज आर द ऑप्शंस इट्स आस्किंग। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं कि हमारा इमेज लोकल है, हमारे लोकल मशीन में उस ऑपरेटिंग सिस्टम का इमेज है। हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं। तो हमने इसको सेलेक्ट किया और हम नेक्स्ट जाएंगे। यहाँ पे आप उस इमेज को सेलेक्ट कर सकते हो ब्राउज करके, जहाँ भी जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, डायरेक्ट इंस्टॉल करेंगे उस स्क्रीन को। आप लोग यहाँ पे उस लोकेशन पे जाके ISO इमेज को आप सिलेक्ट करें। आप सिलेक्ट कीजिए। आप ISO इमेज सिलेक्ट कर कीजिए। हाँ सर, कर रहा हूँ, एक मिनट। या ओके, तो आपके सिस्टम में गए जहाँ भी जिस लोकेशन पे भी आपका ISO इमेज है, आप ISO को आप रेड हैट से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर उसको आप पेन ड्राइव से भी आप उसको कर सकते हो। तो हमने सेलेक्ट कर लिया है इमेज को। सेलेक्ट कीजिए ISO इमेज को। राइट, यस, आपको फॉरवर्ड करना है। यस कीजिए। ओके, उसके बाद गाइज आपको रैम सेट करना है, मेमोरी सेट करनी है। तो यहाँ पे 2 GB दिया हुआ है। तो ये आपके लैपटॉप में 8 GB मेमोरी है। आप अपने वर्चुअल मशीन को 2 GB आप दे सकते हो। हाउ मेनी वर्चुअल CPU आपको देना है, यहाँ पे आप आसानी कर सकते हो। यहाँ पे आप इसको 1 वर्चुअल CPU आप कर दीजिए। फॉरवर्ड कीजिए। राइट, उसके बाद स्टूडेंट्स आपको क्या सेलेक्ट करना है? डिस्क स्पेस देना है। जैसे कि आपका जो वर्चुअल मशीन में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा तो उसके लिए वर्चुअल हार्ड डिस्क की जरूरत पड़ती है। और उसकी हार्ड डिस्क कहाँ से मिलेगी आपको? फिजिकल हार्ड डिस्क से। तो यहाँ पे हम उसकी साइज भी डिसाइड करते हैं। तो हम साइज वहाँ पे 20 GB है, इसको हम चेंज कर देके 40 GB कर देते हैं। आप 20 GB भी एनफ है, हमने 40 कर लिया। इसको फॉरवर्ड करते हैं। हमने यहाँ पे डिस्क सेलेक्ट कर लिया और इसके बाद हम उस वर्चुअल मशीन का नाम दे देते हैं। सर यहाँ पे सेज यूनिवर्सिटी, सेज लिख दो, VM का नाम सेज कर दो। यस,
तो हमने VM का नाम दे दिया, आप चाहे जो भी नाम देना चाहिए, यू कैन गिव, राइट। और उसके बाद हम इसको फिनिश करते हैं। Is it तो visible? स्टूडेंट, यस, तो आपके पास ऐसे स्क्रीन आएगा और यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं स्टूडेंट्स, गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे। पहला है कि स्टार्ट फेडोरा, और उसके बाद नीचे में है सेकेंड लाइन टेस्ट है। तो यदि आप फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंड यदि ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो क्या होगा कि आपका जो मीडिया है, जो आपको आपकी जो ISO फाइल है वो टेस्ट होगी। टेस्ट मतलब जिसमें कोई मिसिंग है, कोई पैकेज मिसिंग है, कोई करप्ट है, तो क्या होगा कि इट विल गिव एरर। तो इंस्टॉलेशन के पहले आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया और फिर हम इंस्टॉलेशन आगे बढ़ेंगे। सर नाडू सर, सेलेक्ट द फर्स्ट ऑप्शन। Yeah. So guys, you can see now installation it's going on. Yeah. तो गाइज आप लोग यहाँ पे आप देखो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम फेडोरा इंस्टॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप उसका लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, हिंदी इंग्लिश। तो आप इंग्लिश सेलेक्ट कर लो यहाँ पे और फिर हम नेक्स्ट जाएंगे। Can you see? और उसके बाद वेट 1 सेकेंड। तो गाइज आप लोग देखो यहाँ पे इस स्क्रीन पे ऊपर में टाइम एंड डेट है या नहीं, आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। नीचे में यहाँ पे क्या है कि इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन। तो आपको यहाँ पे हार्ड डिस्क सेलेक्ट करना है। जो आपने 40 GB की हार्ड डिस्क आपने डिसाइड किया था, उसी हार्ड डिस्क में, वर्चुअल हार्ड डिस्क में आपको OS को इंस्टॉल करना है। तो आप डेस्टिनेशन पे सेलेक्ट कीजिए सर, और हार्ड डिस्क को सेलेक्ट कीजिए। यस, हार्ड डिस्क सेलेक्ट करना है। उसके बाद गाइस क्या करना है आपको कि ये जो इंस्टॉलेशन है, इस यहाँ पे इस स्टेप में दो ऑप्शन है नीचे में, जो पार्टीशनिंग बनती है। अब हम क्लास में इसको डिस्कस करेंगे कि जो पार्टीशनिंग बनती है, आप चाहो तो इसको मैनुअल पार्टीशन दे सकते हो। मैनुअल में क्या, आप अपने हिसाब से साइज दे सकते हो, या उसको ऑटोमेटेड हम बना सकते हैं। ऑटोमेटेड में क्या होगा, ऑटोमेटेड सिलेक्ट करोगे, पूरी की पूरी 40 GB की जो हार्ड डिस्क है आपकी वर्चुअल मशीन की हार्ड डिस्क है, उसमें अपने आप पार्टीशन क्रिएट हो जाएंगे
और इंस्टॉल हो जाएगा। तो और सर आप यहाँ पे चूंकि टाइम कम है, आप I'll go. ऑटोमेटिक नहीं, I'll go with configure with partitioning, पर नो नो उसको ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक, उसमें फिर ऑटोमेटिक ले लूंगा तो पार्टीशन दिख जाएंगे कितने पार्टीशन बने हैं। ठीक है, ठीक, गो विद दैट। Now see, I'll just check this, click automate partition. Now see, these are the partitions, you'll get it. हाँ, तो यहाँ पे आप लोगों को 3 पार्टीशंस बन गए हैं, यहाँ पे वहाँ पे दिख सकता है वहाँ पे। और यस, फिर आप तो आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट जाएंगे, अपने आप 3 इस पर डिस्कस करेंगे, लेटर क्लास में डिस्कस करेंगे। हमारा पार्टीशन बन गया है, नेक्स्ट नेक्स्ट गो अहेड, नेक्स्ट। तो क्या करेगा यहाँ पे कि जो भी अब पार्टीशंस बने हैं उसको फॉर्मेट करेगा, और फॉर्मेट करने के बाद उस डिजायर्ड लोकेशन में जो भी पैकेजेज होंगे, है ना, उसको इंस्टॉल करेगा। फिर आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट। यस, इंस्टॉलेशन स्टार्टेड। यहाँ पे क्या है गाइस कि मैं आपको बता दूं कि जैसे कि विंडोज में एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होता है, सुपर यूजर होता है, एडमिनिस्ट्रेटर होता है, मेन अकाउंट होता है, उसी तरह से लाइनक्स में जो सुपर यूजर होता है वो रूट होता है, बाय डिफॉल्ट रूट होता है। हम उसका पासवर्ड यहाँ पे सेट कर सकते हैं ऊपर में। तो सर आप इसका एक पासवर्ड सेट कर दीजिए, रूट का पासवर्ड रेड हैट सेट कर दीजिए। Sir, I think password will not match. No match. Red Hat password लीजिए, Red Hat। ठीक है, yeah, it will take some time. It's Yeah, okay. it will take time. So guys, if you wanted to install multiple virtual machine, make sure your machine should be powerful. If you have 16 GB laptop, then only you can keep 3 virtual machine, because for your base operating system only minimum 4 GB is required. Recommended is 8 GB. So like that, it's very easy. You can see now we just in a few steps we started the installation. It will take 15 minutes time to complete the installation. Why sir, क्यों पासवर्ड नहीं ले रहे हैं? सर स्लो है इसलिए? स्लो है, इंस्टॉलेशन चल रहा है ना। ओके, तो नो आप पासवर्ड दे के आप छोड़ दीजिए उसको, इट विल टेक। दे रहा हूँ।
ठीक है। या तो स्टूडेंट उसको छोड़ दीजिए, जस्ट लीव दैट। तो सेकेंड ऑप्शन में स्टूडेंट्स, इफ यू वांटेड टू क्रिएट योर यूजर नेम, एक और अकाउंट आप बनाना चाहते हो तो आप अपना बना सकते हो। सेकेंड वहाँ पे यूजर के साथ कर सकते हो, नहीं नहीं क्रिएट कीजिए। तो आप इंस्टॉलेशन इज गोइंग ऑन, आई थिंक अराउंड 40% हैज बीन डन। कितना परसेंट हो गया सर? 38। 38%। सो अनदर 10 मिनट्स इंस्टॉलेशन हो जाएगा। सो उसके बाद ये रिबूट करेगा, आप उसको लॉग इन कर सकते हैं जो हमने पासवर्ड दिया उससे। तो दिस इज वेरी सिंपल प्रोसेस। एक लिनक्स के ऊपर एक सिंपल छोटा सा वर्चुअल मशीन बनाना और उस पर आप इंस्टॉल कैसे करेंगे, वेरी सिंपल स्टेप्स। तो दिस इज यू नो छोटा सा प्रैक्टिकल हम देखे आज। ये सेशन कुछ और बेटर हो सकता था यदि स्टार्टिंग में लैपटॉप शेयर हो गया रहता। तो एनीवे, no problem, we will continue, we will do tomorrow, and later on also we will do that. So till we continue session. So नरेंद्र सर, इंस्टॉलेशन चल रहा है। आप किसी स्टूडेंट को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो गाइस। It will take 10 minutes time for the installation, so you know if you have any doubts, कुछ questions तो आप पूछ सकते हो। Anyone, if you have any doubt or query, you can ask. One more thing students, जो सेज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, सर रिपीट इट। शुक्ला सर रिपीट इट। जो ओके तो गाइज मैं ये बोल रहा हूँ कि जो रेड हैट एकेडमी सेज यूनिवर्सिटी है, तो जो सेज यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है उनके लिए ऑफर है। मैं ऑफर बता दे रहा हूँ यहाँ पे कि यदि आपको पढ़ना है रेड हैट तो आप अपना डिपार्टमेंट में जो एडमिन है आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। 50% आपको डिस्काउंट मिलेगा सर्टिफिकेशन पे, एंड मिनिमल ट्रेनिंग फी पे आपका ट्रेनिंग हो जाएगा कॉलेज कैंपस में, और आप लोग उसको शुरू करो। और यहाँ से मतलब इट्स वेरी इजी, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप जब इसको पढ़ोगे आगे, फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल, फिर क्लाउड पढ़ो, फिर ऑटोमेशन पढ़ो, बहुत सारा चीज़ पढ़ सकते हो। उसको पढ़ने के लिए सीढ़ी यही है, पहला स्टेप यही है। यहाँ से आप लोग शुरू करने का प्लान करो। इवन दो इन द लॉकडाउन ऑल्सो वी कैन प्रोवाइड यू ऑनलाइन सेशन। कॉलेज खुलेगा तो फिर हम क्लास में भी पढ़ाएंगे। तो जस्ट यू कैन प्लान। आप नरेंद्र सर से डिस्कस कर सकते हैं इसका जो भी प्राइसिंग है। विल गिव सम ऑफर, गुड ऑफर, और आप लोग करो, पढ़ो, स्टार्ट करो। Sir, your voice is not audible. शुक्ला सर। नरेंद्र सर, अभी अभी आवाज आ रही है मेरी? Yeah, आवाज of आ रही course. है। या तो मैं स्टूडेंट्स को ये बोल रहा था कि जो भी सेज यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सीएस डिपार्टमेंट जो आप लोग एडमिन हैं, तो जो भी इनकी ट्रेनिंग्स होगी जब कॉलेज खुलेगा, ऑफ कोर्स लैब है रेड हैट एकेडमी की सेज में, कॉलेजेस में होगी क्लासेस। स्टूडेंट ऑनलाइन, तो यू नो सेज यूनिवर्सिटी के जो भी स्टूडेंट हैं बेनिफिटेड होंगे। और क्लाउड पढ़ना है या डेवॉप्स पढ़ना है, नेटवर्क्स पढ़ना है, कोई भी लेवल पे ट्रेनिंग करनी है, ये लाइनक्स आपकी पहली सीढ़ी है। यहाँ सबको शुरू करना है और आपको पढ़ना और मेहनत करना है यहाँ से। so you can start your career slowly and करोगे इसको शुरू करने के लिए, स्टार्ट मतलब कर सकते हो स्टार्ट। सो इंस्टॉलेशन इज गोइंग ऑन, जस्ट इतना ही। इंस्टॉलेशन में कुछ खास नहीं है, इंस्टॉलेशन जाएगा आगे
एंड पूछेगा रिबूट करने के लिए, और रिबूट करने के बाद आपको लॉगिन स्क्रीन मिल जाएगा, आप यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन करो, फिर वहां पे उसके अंदर आप जो चलाना चाहो चला सकते हो। दिस इज व्हाट इंस्टॉलेशन स्टेप्स। नरेंद्र सर, क्वेश्चन Yes. आंसर का सेक्शन रख दें या कुछ बच्चे कुछ पूछ लें? वैसे टुडे ऑडियंस इज वेरी लेस। Yeah, right now I think so. But we Yeah, are it's fine, no problem. now. Shall we wind up this session? Chandrasekhar sir, is कोई it क्वेश्चन any other? एक सेकंड से देख लेते हैं। ठीक है। Any student, if you have any query or if you want some information, you can drop a message in chat box. I think sir, no one have any doubt, or so shall we wind up this Okay, session? so so thank you everyone, to for attending this session. Tomorrow 2 o'clock we will start, and tomorrow we will try best करना कल का क्लास। कल बेटर सिखाएंगे, सर्वर बनाना सिखाएंगे, वेब सर्वर कैसे होस्ट करते हैं। At least some information you will get it. So tomorrow, and thank you for today's session to Narendra Sir University, and thanks Vikas sir, for Thanks a lot, sir. coming first, everyone. Thanks. Yeah. Now I will try to wind up this session, today's session, with we are really entitled with your knowledge and the presence. So we will see you tomorrow on at 2 p.m. So just thank you so much for attending the session, and we will now we'll see you on tomorrow. Thank you so much. Hello.